Hello everyone, welcome to Northeast PSC. In today's discussion, we will be discussing about India-Russia relationship. The Prime Minister of India has recently made a visit to the Russian Federation. Russia is a very important ally or partner for India in international relations. India and Russia is growing increasingly closer in terms of multiple relationships, be it trade or defense cooperation, all kinds of things. And there is a sense of discomfort between India and US relationship because of the growing closeness between India and Russia. So all these things we'll try and understand that this particular visit, how important was it for India, and what are the things that we need to understand from an examination perspective. Okay, so with all those things keeping in mind, let us begin today's discussion. I'm Nazrul Islam, welcoming you to today's session. So what is that context? Context ये है कि Mr. Modi, he made a visit to the Russian Federation. His last visit was in 2019. ठीक है, उसके बाद ये the next visit is in 2024, which is coming after 5 years, and it shows कि Russia is a very important country for India. अब Mr. Modi became the Prime Minister for the third consecutive term. ठीक है, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ही वेंट टू G7 का जो आपका समिट हो रहा था इटली में, वहाँ पर गए, मगर एक प्रॉपर जो आपका स्टेट टू स्टेट विजिट की बात करें तो पहला विजिट इट इज़ कमिंग टू द स्टेट ऑफ Russia. So this shows how important Russia as a country for India holds. The summit aimed to solidify the strategic partnership between the two nations. दोनों कंट्री के बीच में जो हमारे रिश्ते हैं, ठीक है, उसको और तवज्जो, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जो मंशा है वो यहाँ पर दिखाती हैं. So what are the key highlights? If we talk about the highlights of this particular visit, we need to know that first of all, the highest honorary award of Russian Federation, okay, its name is Order of Saint Andrew the Apostle. तो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है. दिस हैज़ बिन बेस्टोड ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस अवार्ड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय जार पीटर द ग्रेट इन 1698 और इसके फिर दोबारा इसको रीइंस्टेट किया गया था 1998 में. वॉट एवर इट इज़, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, जस्ट लाइक भारत रत्न इन इंडिया विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पर दिया गया है, विच इज़ अ बिग डिप्लोमेटिक विन फ्रॉम इंडियाज़ पर्सपेक्टिव. ठीक है, इतनी बड़ी लेवल पे अगर कोई रिकॉग्निशन मिलती है, इट शोज़ कि हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो डिप्लोमेटिक जो हमारा एफर्ट्स है वो कितना फ्रूटफुल हो रहा है इंटरनेशनली. Prime Minister Modi was honored with this award for promoting the strategic partnership and friendly relations between Russia and India. और रशिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है ये कितना स्ट्रांग है आप समझ सकते हैं कि देयर इज़ ए ऑलमोस्ट फ्रेंड लाइक bonhomie between Mr. Putin and Mr. Modi, and this has grown over the years. ये बस मतलब साल दर साल ये बढ़ता ही गया है. सो दिस सेज अ लॉट अबाउट द इम्पोर्टेंस रशिया होल्ड्स इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ओके, so foreign leaders such as Chinese President Xi Jinping and former Kazakh President Nursultan Nazarbayev have also been honored with this award. तो Chinese President की अगर हम बात करें, China is one of the largest trading partner of रशियन फेडरेशन, और चाइना और रशिया की जो क्लोजनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. इन ड्यूरिंग द लास्ट विंटर ओलंपिक्स जो चाइना में हो रहा था, उस टाइम मिस्टर पुतिन मेड ए विजिट टू चाइना. तो वहाँ पर इन लोगों ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन रिलीज़ किया था वेयर दे डिक्लेयर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड रशिया इज़ ए रिलेशनशिप विदाउट एनी लिमिटेशंस. तो उस तरीके की इम्पोर्टेंस होल्ड करती है, और रशियन गवर्नमेंट के द्वारा मिस्टर शी जिनपिंग को भी ये अवार्ड दिया गया है, एंड दैट सेम अवार्ड हैज़ बिन बेस्टोड ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. दिस शोज़ कि इंडिया के जो इम्पोर्टेंस है विथ रेस्पेक्ट टू रशिया के इंटरेस्ट ये भी उतना ही मायने रखता है. नेक्स्ट, if we talk about economic cooperation, a new bilateral trade target of $100 billion by 2030. So दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड है आपका, आई थिंक 2021 के अराउंड ये $13 बिलियन था, अब बढ़ के लगभग $27 बिलियन हुआ है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट रूसो चाइनीज़ ट्रेड की अगर हम बात करें, इट इज़ समवेयर अराउंड $240 बिलियन. तो इंडिया की जो इंडिया और रशिया के जो ट्रेड है
उस ट्रेड वॉल्यूम को अगर कंपेयर करें रशिया और चाइना के साथ, दैट्स एबिसमली लो। तो हमारा टारगेट है कि 2030 तक ये जो ट्रेड है हम दोनों कंट्री के बीच में, इट शुड बी इंक्रीज्ड बाय लाइक 3 फोल्ड, इसको लगभग $100 बिलियन तक पहुंचाना है। दिस इज मेनली ड्यू टू इंडियाज इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड। तो जब से हम लोगों ने क्या देखा, तो 2022 से शुरू हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर 24 फरवरी से, तब से हम लोग क्या देखते हैं, देयर हैज़ बीन ए मल्टीफोल्ड ऑफ सैंक्शंस दैट हैज़ बीन पुट ऑन रशियन फेडरेशन। तो उस टाइम से हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया जो है अपना जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट की जो मात्रा है रशिया से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इसके वजह से हम लोग का ट्रेड काफ़ी लगभग $30 बिलियन तक पहुंच चुका है। बट वी वांट दैट नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 30 बिलियन से जाके $100 बिलियन तक पहुंचे। एग्रीमेंट टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम 2030 फॉर डेवलपिंग प्रोमिजिंग एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक क्षेत्र में दोनों कंट्री के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया जाए। ठीक है, India and the Eurasian Economic Union have commenced negotiations for a free trade agreement। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ये 5 कंट्री का एक ब्लॉक है, रशिया, किर्गिजिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस। ये एक बॉडी बनाते हैं जिसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो इंडिया और इस बॉडी के बीच में एक FTA साइन करने की कोशिश किया जाए। व्हाट इज ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? जब कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है बिटवीन 2 एंटिटीज और 2 कंट्रीज, तो उसके तहत कोशिश किया जाता है ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, और ट्रेड रिलेटेड जो भी आपका डायरेक्ट बैरियर्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैरियर्स, उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ताकि दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड है बहुत स्मूथली बढ़ पाए और ट्रेड की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो पाए। ठीक है, The leaders agreed to facilitate participation of Russian businesses in Make in India and आत्मनिर्भर भारत programs। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेट प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, 2014 में लॉन्च किया गया था। उसके अलावा कोविड पैंडेमिक के दौरान हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत नाम के एक प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए देखा, ताकि हम लोग सेल्फ सस्टेनिंग हो पाए। ठीक है, इंडिया दूसरे के ऊपर रिलाई ना करना पड़े। एज वी हैव सीन ड्यूरिंग 1991 जब BOP क्राइसिस हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, तो हम क्या कर रहे थे, वी आर ओवरटली डिपेंडेंट ऑन IMF। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए वी आर फोकसिंग ऑन मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। तो इस तरह की प्रोग्राम में रशियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने की भी यहाँ पर बात चल रही है। इफ़ वी टॉक अबाउट डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप जानते हैं मोस्ट रिसेंटली हम लोगों ने S-400 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हम लोगों ने रशिया से ऑर्डर किए हैं। तो इसकी वजह से इंडिया और US जो रिलेशनशिप है उसके बीच में काफ़ी एक डेंट हो गई है। ठीक है, US वांटेड टू पुट सम सैंक्शन ऑन इंडिया, बट क्योंकि इंडो पैसिफिक की अगर हम जब भी बात करते हैं इंडो पैसिफिक, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो US का सबसे डिपेंडेबल फ्रेंड है वो है इंडिया। तो इंडिया के ऊपर किसी तरीके की सैंक्शन लगाना मतलब कि जो चाइना के आसपास जो लेवरेज US को आज है वो कल नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा। बट द ग्रोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर USA, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरिंग फैक्टर है डिफेंस की। अगर हम बात करें डिफेंस के क्षेत्र में हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इंक्लूड सेटिंग अप जॉइंट वेंचर्स फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडिया एंड आर्म्ड फोर्सेस एंड फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट टू फ्रेंडली थर्ड कंट्रीज। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, रिसेंटली हम लोगों ने फिलीपींस को वो बेचा है, ब्रह्मोस, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स बेचा है। तो ब्रह्मोस जो है इट हैज़ बीन डेवलप्ड विद द सपोर्ट ऑफ रशियन फेडरेशन। ठीक है, तो उसको हम लोग फिलीपींस को जाके बेच रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ डिफेंस पैक्ट और डिफेंस रिलेशन ये भी हम लोग क्या देखते हैं काफ़ी इंक्रीजिंगली हमारे इंडियन फेवर में बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रशिया। ठीक है, इसके अलावा दोनों कंट्री ने एग्री किया है कि हम लोग एक नए वर्किंग ग्रुप बनाएंगे ताकि जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, क्योंकि आज क्या है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज जो आपका लार्ज लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऐसा करके कुछ होता है। सो इट्स अ टाइम एरा ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो आपका बड़े बड़े इकोनॉमीज़ हैं, जो लार्ज इकोनॉमीज़ हैं, दे कम टुगेदर, दे वर्क इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर एंड मेक दिस प्लेस और द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन IRIGC
M&MTC, तो इस तरीके की एक बॉडी बनाया जाएगा जहां पर क्या हो गया आपका दोनों कंट्री के लोग टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को इन्हेंस करने की कोशिश करें। तो पुतिन ने एक्सेप्ट किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको रिक्वेस्ट किया है कि टू डिस्चार्ज इंडियन मिलिट्री रिक्रूट्स सर्विंग इन द रशियन मिलिट्री, जो भी इंडियन लोग जो रशियन मिलिट्री में हैं उन लोगों को आप क्या करें, रिलीज कर दें ताकि दे कैन कम बैक टू देयर मदरलैंड, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रशिया में काम करने के लिए गए हैं एंड दे एंडेड अप जॉइनिंग द रशियन ट्रूप्स एंड दे आर फाइटिंग ए वॉर विच इज़ नॉट देयर ओन। तो उस पर भी मिस्टर पुतिन ने एग्री किया है कि ओके वी विल रिलीज दोज पीपल। Russian law allows the recruitment of foreign soldiers after thorough screening including mental and physical checks। तो इंडिया में जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें, अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस में किसी को शामिल करना हो तो इंडियन लोग आ सकते हैं और कुछ इलाके में नेपाल के लोग भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, बट नॉट टू अदर कंट्रीज। तो लेकिन रशिया में ये लॉ है कि फॉरेन नेशनल्स भी वहाँ पर आर्मी में शामिल हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए कई सारे कोशिश किए गए हैं। जब 2019 में जब मिस्टर मोदी जब गए थे व्लादिवोस्टोक गए थे, द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया, तो ये मान लीजिए इंटर रशिया, ये जो ईस्टर्न रीजन है यहाँ पर है आपका जगह है व्लादिवोस्टोक। तो वहाँ पर इंडिया ने कमिटमेंट किया था वी विल बी मेकिंग ए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन दिस रीजन, ताकि इस रीजन का क्या हो पाए, आपका डेवलपमेंट हो पाए। अलॉन्ग विथ वी विल ट्राई एंड बिल्ड ए लिंक बिटवीन व्लादिवोस्टोक एंड चेन्नई। ठीक है, तो ये कोशिश किया गया है दोनों कंट्री के बीच में, चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर एंड INSTC। INSTC क्या होता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये एक, अगर हम लोग इंडिया से रशिया जाना हो यूजुअली हम लोग ये रास्ता लेते हैं। ठीक है, अरेबियन सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए यहाँ पर हम लोग रशिया पहुँचते हैं। बट देयर हैज़ बीन प्लान ताकि जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाए बाय अराउंड 40% बाय डेवलपिंग समथिंग कॉल INSTC। तो ये भी कोशिश किया जा रहा है बिकॉज रशिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। इसके अलावा एक रूट है नॉर्दर्न सी रूट। तो एक तो देखिए व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई की अगर हम लोग बात करो तो है ही, पर इसके साथ साथ नॉर्दर्न सी रूट को भी डेवलप किया जा रहा है रशिया के द्वारा। रशिया क्या है कि जो आपका मोस्ट ऑफ द जो उनकी जो पोर्ट एरियाज़ हैं, ठीक है, दे रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। तो उसके वजह से काफ़ी क्या होता है उसको एक्सेसिबल नहीं रहता है, इसीलिए नॉर्दर्न सी रूट को डेवलप किया जा रहा है ताकि जो बेरिंग स्ट्रेट है वहाँ से होते हुए पैसिफिक ओशन के थ्रू ये एक ईस्टर्न पार्ट्स में एक ट्रेड रूट फैसिलिटेट किया जाए। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर प्लानिंग में है, ये सारे चीज़ें दोनों कंट्री के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो दिस आर द रीजंस कि इंडिया के लिए रशिया क्यों इतना इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करती हैं तो UN सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना था इंडिया 2021 से लेकर 22 के बीच में, और इंडिया का जो रोल रहा क्योंकि एक साल में एक जो आपका UNSC के मेंबर होता है, जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, वो 2 साल के लिए चुना जाते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए चुना जाता है और 2 साल में 2 बार ऐसा होता है 2 महीने के लिए वो लोग प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इंडिया का जो एफर्ट था, इंडिया का जो परफॉर्मेंस था, उसको लेकर भी इन्होंने अप्रिशिएट किया है। रशिया reiterated its support for India's permanent membership in the reformed एंड एक्सपेंडेड UNSC। तो UNSC को रिफॉर्म किया जाना चाहिए, उसको एक्सपेंड किया जाना चाहिए, और अभी जो वहाँ पर P5 है, परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, वहाँ पर इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहिए अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज। इंडिया एक्सप्रेस्ड फुल सपोर्ट फॉर रशियाज ब्रिक्स चेयरशिप इन 2024। ब्रिक्स की जो आपका चेयरमैनशिप है वो अभी 2024 में किसके पास है, इट इज़ विथ रशिया, और इंडिया ने बोला है कि हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे टू मेक दिस दिस टेन्योर ए सक्सेसफुल वन। ठीक है, 2023 में कौन चेयर था ये आपको बताना है। ठीक है, और क्लोज कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल फोरम्स सच एस यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स, SCO। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग ये कोशिश करें कि इंडिया साइड लुक्ड फॉरवर्ड टू रशिया's ज्वाइनिंग ऑफ ISA, CDRI, IBCA। तो इस तरीके की चीज़ों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के दोनों कंट्री के बीच में जो कोऑपरेशन है इट बिकम्स इवन मोर and more fruitful in coming days and years।
ग्लोबल इश्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग को कंटिन्यूसली मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तो उस पर भी यहाँ पर कमिटमेंट शो किया गया है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एक हम लोग कभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड में हम लोग रहना नहीं चाहते हैं कि जहाँ पर या तो यूएस या फिर एक चाइना ऐसे डोमिनेंट कंट्री हो, पूरी दुनिया भर में अपना बलबला चलाए। There should be multiple powerful countries who can decide their own fate। तो वो मल्टीपोलर वर्ल्ड के रिगार्डिंग भी हम लोग क्या यहाँ पर एक एम्फासिस शो किया गया है by both the countries। तो these are the things that you need to know with respect to India and Russia relationship, why Russia is so important for India and how this relationship is going to be in the coming years। ठीक है, तो इसी के ऊपर यूपीएससी में मेंस में 2020 में एक सवाल पूछा गया था जो आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है। और जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करिएगा कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन है, इफ देर इज एनी देन ट्राई टू राइट एन आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप कोशिश करिए 250 वर्ड्स में इसका लिखने की आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप the video was informative and useful. If you find it useful, please hit the like button, subscribe to the channel and put a comment below the channel. Thank you so much. Bye bye.